Hello, everyone. Greetings of the day, everybody. I'm Priyanjali from Beautiful Spotless Skin team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are diving into a topic that touches everyone under the sun. Literally, we are here to talk about sunscreen, a necessity in today's time. Did you know that only about 30% of adults and even fewer children regularly use sunscreen when exposed to the sun? With skin problem rates on the rise, understanding the significance of sunscreen is more crucial than ever. Sunscreen isn't just about preventing sunburns, it is about powerful shield against harmful UV rays that can lead to premature aging, wrinkles, hyperpigmentation, and most importantly, skin cancer. Yet, many of us still have questions about which sunscreen to choose, how often to apply it, and its long term benefits. Whether you are a skincare enthusiast or just starting to explore the world of sun protection, let's unlock the secrets together and embark on a journey towards a safe skin. That's why we are thrilled to have Dr. Meghna Gupta from Delhi with us today. Dr. Meghna Gupta is a luminary in cosmetic dermatology, masterfully merges time honored techniques with today's innovation. She strongly believes that every skin tells a story and she is here to listen and heal. As a pioneer of dermatology with a global clientele and regular media feature, her leadership at Delhi Skin Center New Delhi ensures not just treatment but transformative skin journeys. With over 21 years of dermatological excellence coupled with compassion, Dr. Meghna and her team at Delhi Skin Center blend cutting edge dermatological practices with a deep sense of empathy and care. Their commitment to excellence extends beyond advanced treatments. It is just about understanding and responding to unique needs of each individual which walks through their door. Dr. Meghna, we are truly honored to have you here today. Your presence adds immense value to our session, and we are extremely excited to talk about all the things related to protection or maybe protecting our skin and of course sunscreen. uh, and we seriously know that this session is going to be a very very interesting one. So let's dive into the first question, doctor. The first question for you would be, how often should we apply sunscreen, and why is it so much important to apply sunscreen in today's world? Normally when we were young, we were not so much conscious about our skin. Our parents never used to tell us कि जाओ sunscreen लगा लो, uh, कि घर से बाहर जाओ तो sunscreen लगा के जाओ. We just knew one product when we were young. We are not sponsoring any brand today, but we just knew Johnson's Baby. That's all we knew when we were young. But now at today's world, parents are so much conscious. Even the adults, they are so much conscious. Why such change in this minimum time? How are things happening? How are things moving so fast? Please enlighten us, doctor. First of all, Priyanjali, thank you for the lovely introduction. It's my pleasure to be on this platform. And if little bit of talk for few minutes can make a difference in people's life to their skin, they can change, which is a very positive change. I'll be very, very happy. Okay, answering this question, you know, awareness has really increased. First, I'll answer that because earlier the people were not aware. What we are doing right now, we're using the platform, the social media, the digital exposure, which has come of age in last couple of years, has shrunk the world. The information, the knowledge can be really exchanged within few seconds and minutes. So because of that awareness, now everybody is talking about things which they should be doing. Earlier these things never existed. Secondly, the ozone layer was very thin before, so the kind of UV rays which were coming to earth were not so harmful. Now we all know how the ozone layer is getting depleted, the ultraviolet, and we are cutting down the trees. I'll not go into details of global warming and all of that and deforestation. Because of that, the ultraviolet rays are actually hitting us, and skin actually bears the brunt of that. Okay, so if we divide the skin problems due to sun rays, very simple, धूप की वजह से, so there's something called cancerous. Of course, we are Indians. Our incidence of skin cancer is less than 1%.
So, we are not so worried about the cancer, but photo damage, photo aging, and many other sun related diseases, like there is a photo urticaria, there is a photosensitivity, there's something called DLE. There are many disorders where as soon as UV rays will fall on the skin, they will get activated. Then cosmetically, if we don't talk about clinical, we talk about vanity. That's what most of the people want to know. We have to prevent photo aging. There are two kinds of aging. एक अंदर से होता है internal aging, which is genetic. तो होना ही है एज, सबको सारे सेल्स को एज होना है. एक होता है एक्सटर्नल एजिंग. Many factors play a role, of course your lifestyle, your nutrition. So environmental damage is another. In environmental damage, ultraviolet rays is one of the many reasons for the skin to get damaged. So you need to protect. We firmly believe prevention is better than cure. That is why sunscreen is Right. to be used widely, and our exposure to sun is increased much more. People do so many outdoor activities. So many kids are swimming, playing sports. Like, people plan a lot of outdoor activities. So if they're outdoors, of course ultraviolet ray protection is required. Then if I talk about physics a bit, many people say I'm indoor, I'm working, I'm like 10 hours inside, मैं तो कमरे में ही रहते हैं, हम तो बाहर जाते ही नहीं है. you know Even then, most of the dermats, including me, we lay emphasis that you must use sunscreen on a day to day basis, even if indoors. So sometimes I feel it should not be the word sunscreen, uska word hona chahiye photo screen. There are three kinds of lights. If I try telling you in very simple language, one is ultraviolet rays, जो आपको धूप से मिलती हैं. The other one is infrared rays, which is a visible light spectrum. You will see many sunscreens writing IR spectrum, broad spectrum means सारी lights Right. को वो filter कर रहा है. And third is this blue light, which you and I right now going to all of us are getting exposed to, which is coming from your Right. gadgets, whether it's your phone, your laptops, your iPads, various where blue light. So even this needs filter. After a particular number of hours, even blue light can start damaging the skin. That is why a protective cream called sunscreen is required to protect you. To answer your Right. question. राइट. सो डॉक्टर, आपने मैक्सिमम सवालों के जवाब हमें दे दिए हैं, बट अभी भी आई थिंक हम इन डेप्थ जाना चाहेंगे आज. आई थिंक ये सवाल जो मैं अभी पूछने वाली हूँ, मुझे लास्ट में पूछना था, बट लेट्स गो फॉर इट. कोई बात. हम्म. वी हैव हर्ड दैट वी हैव आल्सो हर्ड पीपल सेइंग कि सन से जो इफेक्ट पड़ता है वो इमीडिएटली नहीं दिखता है शायद. हम बचपन में पहले उतना कॉन्शियस नहीं थे कि टैनिंग हो गया, अरे स्किन जल गया. पर आजकल बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, थोड़ा सा टैनिंग होने से वी अप्लाई सो मेनी थिंग्स, इसको हटाए कैसे. आजकल टैन रिमूविंग क्रीम्स आ गए हैं, व्हाट नॉट, ब्लीचेस एंड व्हाट नॉट. आई हैव आल्सो सीन children applying such creams, which I don't know if it's safe for them. कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट डॉक्टर, ये जो इफेक्ट हो रहा है हमारे स्किन पे सन से, वो क्या सच में इमीडिएटली हमें दिख सकता है, और इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या बचपन में हम देखते थे कि बाय द टाइम वी आर एजिंग यू कैन एक्चुअली सी द चेंजेस ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर स्किन, जो समय के साथ थोड़ा सा कम होते जा रहा है. हमारा उम्र अभी कम उम्र में हमें दिखता है कि हेयर ग्रेइंग, प्रीमेच्योर ग्रेइंग also can be one of the reason because of the sun, I believe. आजकल बहुत छोटे बच्चों में दिखा जाता है कि बच्चों के बाल सफेद हो जा रहे हैं. तो क्या ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जैसे कि आपने कहा, उसके वजह से है, जो हार्मफुल रेज है वो बढ़ते जा रहा है समय की वजह से, उसके वजह से है, इसीलिए हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. Also, there is a part of the society who believes that sunscreen is just business. They are just making money. This is not true. Uh, what are your thoughts on that? ओके, आई स्प्लिट इट वन बाय वन. सन के Yes. इफेक्ट्स दो तरीके के होते हैं. इमीडिएट, विच इज कॉल्ड टैनिंग, रीसेंट टैनिंग, एंड एक होती है डिलेड टैनिंग. Right. एक होती है रीसेंट, यू वेंट फॉर अ हॉलिडे, आप बीच पे खड़े हुए, आप हाई ऑल्टीट्यूड कहीं भी, हिमालय पर्वत कहीं भी घूमने गए, हिल स्टेशन में, एंड यू सी इमीडिएटली शाम को रूम पे आए और मेरे फेस का कलर 2 टोन डाउन है. दैट्स कॉल्ड इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट टैनिंग. एक होता है सनबर्न. कि वो इतना, स्पेशली ग्लेशियर्स पे आप लद्दाख वगैरह जाओ, लोग सनबर्न होके आते हैं, आपको लगेगा वहां तो धूप ही नहीं थी, there was no sun, Right. but there were ultraviolet rays which were very intense. Usually they're more intense between 12 noon to 4 p.m. तो लोग sunburn हो जाते हैं. That's an immediate response to sun. Then there's something called delayed tanning, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में अनइवन स्किन टोन बोलते हैं. लोग बोलते हैं मेरे फोरहेड पे अलग कलर दिखता है, मेरे यहाँ Right. अलग कलर दिखता है. वो कोई क्लिनिकली कोई पिगमेंटेशन नहीं है. इट्स नॉट अ पिगमेंटरी डिसऑर्डर. देयर आर लॉट ऑफ पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं. वो एक डिलेड रिस्पॉन्स है कि आपने क्रॉनिकली, आप लाइट से एक्सपोज हुए, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर्स, धीरे धीरे करके फेस पे अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं.
राइट? जैसे लोग कॉमन भाषा में अनइवन स्किन टोन आप बहुत सुनते होगे, मैगजीन्स में, ब्लॉग्स में, लाइव सेशंस में, अनइवन स्किन टोन, अनइवन स्किन राइट। टोन। टोन का मतलब यही हुआ, द मेलेनिन कंटेंट ऑफ द फेस, फेशियल स्किन इज नॉट यूनिफॉर्म। यूजुअली इंडियंस में यूनिफॉर्म होना मुश्किल होता है, वी डू हैव फ्यू पैचेस हियर एंड देयर, बट जब वो बिल्कुल अलग से बैंड फोरहेड पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दैट्स अ डिलेड रिस्पॉन्स। तीसरा होता है फोटो एजिंग, जो मैंने अभी बताया था। व्हेन यू एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज, धीरे धीरे करके फेस जो है, स्किन की अपनी एक एज होती है, एक आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, चलो आप 35 इयर्स ऑफ एग्जाम्पल, पर आप देखते हो इस देख के लोगों को लोग कमेंट करते हैं तो बड़ा यंग दिखता है, ये तो अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं, ये अपनी उम्र, अरे तुम तो 10 साल छोटी दिखती हो। क्या है वो, क्या हमारी आईज क्या एग्जामिन कर रही हैं? नॉन डॉक्टर्स होते हुए हम क्या एग्जामिन कर लेते हैं? फाइन लाइंस, भाई झुर्रियां, हिंदी में रिंकल्स, भाई इसकी स्किन में बिल्कुल स्मूथ स्किन है, बिल्कुल ओपन पोर्स नहीं है, फाइन लाइंस नहीं है, सैगिंग नहीं है, बिल्कुल स्मूथ बेबी स्किन जिसको हम बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बेबी स्किन का राइट। मतलब क्या हुआ, बहुत सारा कोलेजन है, राइट? क्यों? तो वो जिस पर्सन या तो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं कुछ लोग, और वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं, राइट? वो अगर नहीं होगा तो जल्दी जल्दी कोलेजन, जो एक मेन प्रोटीन होता है जो यूथफुलनेस देता है आपकी स्किन को, मैं आपकी एज की बात नहीं कर रही, टू योर स्किन, दैट स्टार्ट्स गेटिंग डिप्लीटेड. So you see signs of photo aging. So a lot of people, their age may be 30, 35, but they look much older. And there may be many people who are 40, 50 year olds, since they've taken good care, simple preventive one measure, and you see उनकी skin age नहीं हुई है, so they look younger. So photo aging, एस्थेटिकली अगर हम बात करें, अगर हम बहुत ज्यादा क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में ना जाएं, एस्थेटिकली फोटो एजिंग इज प्रिवेंटेड व्हेन यू यूज अ सनस्क्रीन, दैट इज फर्स्ट थिंग. बच्चों में भी, राइट। बिकॉज उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सो यूजुअली बच्चों में, अगर मैं सनस्क्रीन को और डिटेल में जाऊं, तो एक फिजिकल सनस्क्रीन होती है और एक केमिकल सनस्क्रीन होती है. केमिकल डजंट मीन बैड. सबसे पहले आधे दुनिया ये सोचती है केमिकल मीन्स बैड. वाटर का भी केमिकल राइट। कॉम्पोजिशन H2O है, तो कोई पानी थोड़ा खराब है, पानी पीने बंद करे तो मर जाएंगे. सो एवरीथिंग हैज राइट। अ केमिकल कॉम्पोजिशन. सो विद केमिकल सनस्क्रीन वी मीन कि जो भी उसमें फिल्टर्स डाले हैं, जो लाइट को फिल्टर करते हैं, दे मेक अ लेयर along with the skin. वो स्किन सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके प्रोटेक्शन देते हैं. फिजिकल सनस्क्रीन आर लाइक जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो आपकी स्किन के साथ दे डोंट इंटरेक्ट, दे जस्ट मेक वन फिल्म. So for children, we prefer a physical sunscreen, also known as mineral sunscreens or chemical-free sunscreens. Not bad chemicals, but something which is just making a layer, right? So for children, we suggest use physical sunscreens. They are long-lasting. They are not interacting with their skin because it's a growing up age. For adults, depending on your skin condition, you can choose a physical sunscreen or a or a chemical sunscreen or both. Nowadays, there are combinations available. सो बच्चों में भी इसीलिए हो गया क्योंकि बहुत आउटडोर एक्टिविटीज हैं, स्विमिंग है, उनकी स्किन डैमेज हो रही है, इसलिए बच्चे भी बड़ी जल्दी उनकी स्किन खराब होने लगी. सो टू आंसर बोथ द क्वेश्चंस, राइट। दिस इज हाउ आई विल पुट इट फॉर यू. राइट। ऑल्सो डॉक्टर, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो कहते हैं कि ये पूरा ही एक बिजनेस है, यस, पीपल आर जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, नथिंग एल्स, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सी हर चीज ना एक डिबेटेबल टॉपिक बन गई आज के जमाने में. आप कुछ भी हाँ। बोलोगे, कुछ भी करोगे, कोई ना कोई उसके फॉर बोलेगा, कोई ना कोई उसके अगेंस्ट बोलेगा. ओके, राइट। मार्केटिंग गिमिक नहीं है, देयर इट इज बैक्ड बाय साइंटिफिक डेटा. इट्स नॉट समथिंग कि किसी एक ने बोल दिया और सब फॉलो करे. देयर लॉट ऑफ साइंटिफिक, देयर आर पब्लिकेशंस, देयर आर रिसर्च व्हिच गोज ऑन व्हेन समथिंग कम्स आउट. ओके, एंड जो दिखता भी है, यू डू वन थिंग इन फॉर दोस पीपल, आई वुड से आप फर्स्ट आधे फेस को डिवाइड कीजिए, आधे पे सनस्क्रीन लगाइए, आधे पे मत लगाइए, 1 साल बाद बात कीजिए. ओके, तो किसी से कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, खुद पे एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू इट, यू विल गेट द आंसर. तो हर चीज मार्केटिंग कमर्शियल नहीं होता है. अगर किसी को लगता है कि 2-2, 3-3 हजार की सनस्क्रीन मिल रही हैं, वो कमर्शियल है, 200-300 रुपए की भी सनस्क्रीन मिलती है मार्केट. गॉट इट? हमारी कंट्री में हर रेट की हर चीज मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, खाना ढाबे में भी मिलता है और 5 स्टार भी होता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 5 स्टार में मत जाओ, ढाबे में मत जाओ. सेम इज दिस थिंग. अगर आपको लगता है सिर्फ कमर्शियल से तेरा इकोनॉमिकल, चीपर इज अ रॉन्ग वर्ड, इकोनॉमिकल सनस्क्रीन अवेलेबल. ओके, देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, एंड डू एन एक्सपेरिमेंट. आधे फेस पे लगाइए, आधा फेस छोड़ दीजिए. राइट। ऑल्सो डॉक्टर, क्या विंटर में सनस्क्रीन लगाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना समर्स में है? It's a very good question, asked. See, sunscreen should be used 365 days a year.
irrespective of the weather, because I just said हम तीन लाइट से प्रोटेक्शन ले रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज एंड ब्लू लाइट. विंटर में हम इंडोर्स हैं, हम ज्यादा इंडोर्स भी हैं या आउटडोर भी, हम इंफ्रारेड तो उतनी मिलेगी अगर हम आर्टिफिशियल लाइट से एक्सपोज हैं. ब्लू लाइट का एक्सपोजर कोई कोई सीजनल नहीं है, जब मर्जी चाहे लोग गैजेट से एक्सपोज होते रहते हैं ऑल द टाइम. अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी विंटर में या मॉनसून में भी, बहुत लोग मॉनसून भी पूछते हैं, इट्स क्लाउडी, डू आई हैव टू वेयर अ सनस्क्रीन, देयर इज ऑल क्लाउड्स. क्लाउड ठीक है, इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है अल्ट्रावायलेट रेज की, but they remain there. UV rays are there. Intensity may be less, but we need to protect. So, irrespective whether it is summer or it is winter or it is anything, you have to protect your skin. You know, summer में तो लोग धूप में बाहर जाते ही नहीं है, काफी लोग जाते नहीं है. So that is not the answer. There are ultraviolet rays. You have to protect yourself from those. राइट. ऑल्सो डॉक्टर, हम हमेशा सुनते हैं कि एसपीएफ लेवल, क्या होता है ये एसपीएफ लेवल? पहले ये हमें बताइए, और कैसे हम चुने अपने स्किन के अकॉर्डिंग द परफेक्ट एसपीएफ लेवल? Okay. SPF का full form, it's an abbreviated form, sun protection factor. That means for how long can your sunscreen withstand the effect of the sun rays. For example, मैंने SPF 15 लगाया तो उसका इफेक्ट 2 घंटे, एग्जाम्पल है 2 घंटे में जा रहा है. SPF थोड़ा हायर किया तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक लास्ट करता है. बट यूजुअली मिनिमम SPF 15 इज यूजुअली इन एनी प्रोडक्ट दैट यू विल पिक अप. आजकल तो आपके मेकअप में भी SPF लिखा हुआ आता है. यू विल सी राइट, राइट. फाउंडेशन विद SPF, even your compact is with SPF, means even that particular makeup is also giving you some kind of protection from the light sun rays, right? So SPF means for how long can it withstand the effect of sun. ऐसा नहीं है कि हायर SPF ही लगाना है. यूजुअली मिनिमम SPF 26 should be used on a day to day basis until unless you know you are really going to high altitudes or beaches. And sunscreen has to be repeated even if you're using an SPF 50, or many people like to use 80, बट इट हैज टू बी रिपीटेड, बिकॉज उसका इफेक्ट वेयर ऑफ होने लगता है. ऐसा नहीं है कि वो 100% प्रोटेक्शन है. यू कैन नॉट थिंक मैंने सनस्क्रीन लगाया तो आई एम 100% प्रोटेक्टेड. इट कैन नॉट बी 100% प्रोटेक्टेड. ओके, उसके भी बड़े सारे डिटेल्स है कि ए द एसपीएफ ऑफ द सनस्क्रीन. सेकेंडली, इफ आई गो इनटू डिटेल्स, लॉट ऑफ पीपल यूज अ सनस्क्रीन, पर अगर क्वेश्चन पूछो आपकी एक सनस्क्रीन 50 ml की बॉटल कितने दिन चली, बोलेंगे 1 year. तो इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है, बस दिमाग में सूडो प्रोटेक्शन लिया है. इट्स ऑल्सो अबाउट द राइट एसपीएफ, द राइट अमाउंट, द राइट वे टू अप्लाई एंड राइट टाइम टू अप्लाई. मैं इसकी डिटेल बताती हूँ. सो एसपीएफ आपने चूज कर लिया, लेट्स से मिनिमम एसपीएफ 26 आई विल यूज. ओके, नाउ आपने उसको इतनी इतनी मुंह पे लगाई, दैट्स नॉट गोइंग टू गिव अ प्रोटेक्शन. देयर शुड बी अ फुल कॉस्मेटिक कवरेज. वी usually say 2 finger length is enough for the entire face. The right time, that means if you're using a chemical sunscreen, use it 20 to 30 minutes before sun exposure. It needs that much time to interact with your skin cells to give you that protection. अब मैं एकदम लगा के बाहर जा रही हूँ, मेरे बस दिमाग में मैंने सोचा मैं प्रोटेक्टेड हूँ, my skin will get damaged. So 20 to 30 minutes before sun exposure, you must wear your sunscreen. SPF I already told, right amount, then right way to apply. फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हाथों में उसको रब करते हैं, आधी तो हैंड्स ही एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर यहाँ मिडिल ऑफ पार्ट ऑफ द फेस से लेके ऐसे बाहर जाते हैं. मैक्सिमम गोज इन द टी जोन विच इज एनीवेज वेरी ऑयली, एंड द एरियाज where the maximum pigmentation comes for most of the women and men, if you notice this here, वहां तो सनस्क्रीन पहुंची ही नहीं. सो राइट वे में नहीं लगाया. अगर टाइम भी सही किया, अमाउंट भी सही ले लिया, प्रोडक्ट भी सही चूज कर लिया, बट अगर राइट वे में नहीं लगाया, यूनिफॉर्म कवरेज नहीं दी, so it's gone. So what we tell people, put dot 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 and then spread it in, or cater to one cosmetic unit, like divide your face into 3-4 zones. पहले एक चीक पे ढंग से लगाया, फिर दूसरे चीक पे, फिर forehead. So to repeat this, the right SPF, the right amount, the right time to apply and the right way to apply. See कितनी सारी चीजें निकल के आ गई. That gives you a complete protection. राइट. Otherwise it's pseudo डॉक्टर, protection. राइट. डॉक्टर, आपने कहा ऑयली स्किन होता है हमारा टी जोन, Hmm. उनका क्या, जिनका पूरा ही ऑयली होता है, उन्हें क्रीम्स तो लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है. स्पेशली समर के टाइम पे मैंने देखा है कि मॉइस्चराइजर से हमेशा भागते हैं लोग. समर्स में क्रीम नहीं लगाना है. समर्स में आई हैव सीन पीपल इतना इतना पाउडर दे टेक एंड दे पुट इट ऑन देयर फेस जस्ट बिकॉज ह्यूमिड है, स्पेशली द प्लेस वेयर आई स्टे.
आज के डेट में इट्स 43 डिग्रीज हियर. सो Oh, नॉर्मली people are simply running away from moisturizer. आप सनस्क्रीन का बात तो छोड़ ही दीजिए. पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड. वो बाहर जाएंगे, सारे मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन कहाँ जा रहे हैं, दे हैव नो आइडिया. सो व्हाट उनके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? उनको भी तो बचना है थोड़ा सा सनरेज से. absolutely. Now there are earlier there were very basic formulations. Now formulations are thanks to our pharmaceutical companies. I must say they do a lot of R&D. Mm-hmm. Lot of research and development goes in getting a product out. I'm not going to talk about Right. over the counter. I'm talking about pharmaceutical companies, right? They Mm-hmm. are coming up with such beautiful formulations. So there are sunscreens which are gel based. Okay, so they don't feel sticky, they don't feel greasy because their consistency is very gel jaisa, right? Then there are invisible sunscreens available which do not give a white cast, do not give you those oil droplets. They improvise on Mm-hmm. their formulations. Okay, so there are gel based invisible sunscreens. Then a lot of physical sunscreens give a matte effect. Matte word log samajhte hain, which is matte finish, which is shine free, oil free, because oily skin doesn't want more shine. They already have too much shine because of their oil which Yes. is on their skin, right? So there are Yes. anti shine sunscreens which are available, which are shine free, which are oil free, gel based, invisible sunscreens, matte finish. Nowadays there are tinted sunscreens available. Like किसी कोई प्रॉब्लम है कि मुझे व्हाइट कास्ट होता है, यूजुअली लोग पहले सनस्क्रीन को लेके ये बहुत बोलते थे व्हाइट कास्ट है, चिप चिप लगता है, इट्स ग्रीजी, these kind of issues. Now there are tinted sunscreens available. What is tint? It's an iron oxide added to the normal sunscreen, which gives two we can achieve through it. One is it's a camouflage. अगर मुझे पिगमेंटेशन है, uneven skin tone है, मुझे मेकअप लगाने की जरूरत ही नहीं है. My sunscreen has tint in it, so I'm saving my skin from makeup on a day to day basis, right? तो एक तो वो फायदा है. Secondly, आयरन ऑक्साइड ब्लू लाइट को बहुत अच्छे से फिल्टर करता है, जो ये हमें अब एक्सपोज हो रहे हैं मैं और आप right, उसको filter करता है. So there are beautiful tinted sunscreens available. Earlier there used to be only one tint. Now there are makers who are making as per your shade. दो तीन तीन शेड्स के tinted sunscreens available है, which can be chosen. राइट, राइट. डॉक्टर, यहाँ पे 2 सवाल मेरे ज़हन में आते हैं. द फर्स्ट बीइंग, आपने कहा व्हाइट कास्ट. जितने भी औरतें ये लाइव देख रहे हैं इस मोमेंट, और जो अवेयर है सनस्क्रीन और मेकअप के रिलेशन के साथ, इवन आई हैव बीन थ्रू द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ. जब मैंने सनस्क्रीन लगाया, आई डिड नॉट नो व्हिच सनस्क्रीन टू अप्लाई, एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर मेकअप लगाया एंड सब बह जा रहा था. इट वाज़ हम्म व्हाइट, मतलब व्हाइट हम्म वॉश कर दिया गया था मेरे फेस के ऊपर उस हम्म. डे. सबने ये चीज फेस किया है. मेकअप के साथ विच सनस्क्रीन टू अप्लाई, विच वुड बी द बेस्ट वन टू अप्लाई फॉर ऑल द There लेडीज? are many available. First, understand your skin. Is your skin oily, dry, or combination? Pick up a sunscreen. If you're oily, pick up a matte finish, which I just said, gel based, oil free. If your skin is a combination skin, then when you're applying a moisturizer, maybe skip the T zone so that you just get the sunscreen here and use your moisturizer here, followed by sunscreen. And if you have a dry skin, there are lovely creamy formulations available. So before you make up, sunscreen in fact acts as a very good primer, a very, very good primer. अगर अच्छे से ब्राइट सनस्क्रीन चूज किया गया है तो मेकअप बहुत अच्छे से सेट करता है. इट शुड नॉट हैव व्हाइट कास्ट एंड इट शुड नॉट गेट दोज, ऐसे ऐसा लगता है ना, ऐसे क्लम्पी हो जाता है. बहुत लोग आके कंप्लेन करते राइट, हैं कि मैंने सनस्क्रीन लगाया ना, राइट. अप्लाइड मेकअप, इट वाज कमिंग आउट जैसे मेरे मुंह से मैल उतर रहा हो. मेनी पीपल कम एंड टॉक. सो दैट मीन्स अगर यस. आप रोज मेकअप लगा रहे हो तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं लगाना है, थोड़ा सा राइट. क्रीमी लगाना है. इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन के भी क्रीमी फॉर्मुलेशंस आते हैं विच आर नॉट ग्रीजी. देयर इज अ डिफरेंस इन क्रीमी एंड ग्रीजी. सबसे पहले तो यही मतलब समझना है. इट शुड नॉट बी ग्रीजी, इट शुड बी क्रीमी. एवरीबडी लव्स क्रीमी फॉर्मुलेशंस विच आर नॉट ग्रीजी. यू राइट, नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट, एक्सप्लेन. तो वो राइट, क्लम्प राइट. नहीं करता है. एब्सोल्युटली. इट सिट्स वेरी वेल विद मेकअप ब्यूटिफुली. अदरवाइज lovely tinted sunscreens, matte finish physical tinted sunscreens अवेलेबल. उनको थोड़ा आराम से लगाना पड़ता है, नहीं तो वो एक मैट वैसा देते हैं. इवन दैट कैन बी यूज्ड. राइट, राइट. डॉक्टर, आज की डेट का बात करें तो सोशल मीडिया का जमाना है. आई सी एवरी सेकंड पर्सन इज अ कंटेंट क्रिएटर नाउअडेज. सब हर जगह कंटेंट बना रहे हैं, घर से कंटेंट बना रहे हैं. अभी इस वक्त हम भी एक कंटेंट बना रहे हैं. सो डॉक्टर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट क्रिएटर्स,
मेकअप कितना इम्पोर्टेंट है इनके लिए, मेड बी विमेन, मेड बी मेन, एवरीबॉडी इज इनटू मेकअप नाउअडेज। तो उनके लिए एक प्रॉपर स्किन केयर कितना जरूरी है, और स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजर के पहले सनस्क्रीन लगाना है या बाद में, ये रिजीम हम कैसे फॉलो करेंगे, सनस्क्रीन का पोजीशन किस जगह पे आएगा, प्लीज एनलाइटन अस। ओके, सबसे पहले जो कंटेंट बना रहे हैं वो बहुत ब्लू लाइट से एक्सपोज्ड है गाइस। और यस। मेकअप का ना, मैं अपने पेशेंट्स को भी समझाती हूँ, आई एम नॉट एंटी मेकअप। इट्स नॉट मीन कि मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट, मैं मेकअप के अगेंस्ट बोलूंगी, मैं भी मेकअप लगाते हैं जब लगाना होता है। मेकअप का काम राइट। होना चाहिए एनहेंसमेंट, नॉट कैमोफ्लाज। आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, समझो ये भी डिफरेंस। मुझे कुछ कैमोफ्लाज नहीं करना है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको उसको कंसील करने की कोशिश कर रही हूँ, या कुछ और दिखने की, कोई और कलर दिखाने की कोशिश कर। एनहांसमेंट होना चाहिए राइट। मेकअप से, कि मैंने ब्लश लगाया, मैंने फाउंडेशन लगाया, तो मैं और सुंदर दिख रही हूँ। ओके, सो एब्सोल्युटली यस। कैमोफ्लाज की तरह मेकअप यूज नहीं करना है, एनहांसमेंट के लिए यूज करना है। ओके, मेकअप के साथ योर स्किन केयर लेयरिंग की मैं बात करूं, तो अगर जैसे आप फेस वॉश यूज करो सबसे पहले, फिर आप एक टोनर लगाते हो, फिर आजकल सेरम्स हर कोई लगाता है बिकॉज दे आर मोर एक्टिव्स इन इट। सेरम लगाया आपने, फिर मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन इज ऑलवेज द लास्ट लेयर in your skincare products. This is something which people have to remember. तो मॉइस्चराइजर ऑलवेज कम्स बिफोर सनस्क्रीन। आप अगर सनस्क्रीन लगा के मॉइस्चराइजर लगा रहे हो तो आपने सारा सनस्क्रीन का इफेक्ट नलिफाई कर दिया है, राइट? सो sunscreen is always the last layer in your skincare products. And if you want to wear makeup, you have to wear your makeup on top of the sunscreen, right? That is राइट। the basic राइट। thing. And understand, पतली से लेके मोटे तक जाना है, तो फेस वॉश सबसे पतला होता है, फिर एक टोनर होता है पानी जैसा, फिर सेरम थोड़ा टोनर से भी थोड़ा सा कंसिस्टेंट, एक सिंपल समझाने के लिए, अगर किसी को याद न रहे, थिनर टू थिकर कंसिस्टेंसी। तो फेस वॉश तो निकल ही जाएगा हार्डली फ्यू सेकंड्स, देन टोनर लगाते हो, फिर सेरम लगाते हो, फिर मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन, एंड देन मेकअप कम्स ऑन टॉप ऑफ इट, इफ वी टॉक अबाउट लेयरिंग योर मेकअप विद योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ऑल्सो डॉक्टर, बॉडी के किस किस पार्ट में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है? हम नॉर्मली फेस पे ही थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं कि फेस पे लगा लो हो जाएगा। और कौन से जगह पे सनस्क्रीन वेरी लगाना गुड जरूरी क्वेश्चन प्रियांशी। सी, ऑफ कोर्स फोटो एजिंग सबसे ज्यादा फेस पे होती है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर डैमेज सबसे पहले फेस पे आता है। बट एक्सपोज्ड एरियाज में मैं आर्म और बैक को बोलूंगी, लेग्स आप स्पेयर कर सकते हो, लेग्स इतने, अनलेस आप बीच पे हो या सन बेदिंग कर रहे हो तो लेग्स टैनिंग होती है, पर ऐसे फोटो एजिंग नहीं होती लेग्स पे। सेकंड जो आता है वो आर्म्स एंड बैक। कि अगर आप यूजुअली बैक पे भी कोई डे टू डे वेयर में अंडरनेस बहुत ही डीप नेक का कुछ पहना हुआ है, अगर आवर क्लोथ्स गिव अस अ गुड फिल्टर, इट्स प्रीटी गुड फिल्टर। तो अगर आप फुल पहन के है? रखते हो तो बैक को कोई जरूरत नहीं है। बट या अगर आप स्लीवलेस पहनते हो, आपके आर्म्स एक्सपोज हो रहे, तो आर्म्स पे लगाना जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेक। आई टेल यू, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप उनको कुछ भी ब्रांड स्किन केयर समझाओ, सब फेस तक नेक को इग्नोर कर देते। नेक जो है उन राइट। लोगों की फिर अलग से पता चलती है। मोस्ट ऑफ द यस। टाइम पीपल इग्नोर देयर नेक्स। वो एक बार को आर्म्स पे भी दे विल पुट द सनस्क्रीन, दे विल पुट इट एवरीवेयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज इग्नोर्ड। तो नेक शुड नॉट बी इग्नोर्ड, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू विल ट्राई टू सी, वो कलर ही अलग दिखता है लोगों का, स्किन की यस। क्वालिटी अलग यस। दिखती है, स्किन फेस की एकदम स्मूथ दिख रही है, नेक पे क्रेपीनेस इज विजिबल। Then if I put another body parts, I feel full arms should be protected if you're exposed to sun too much, and you're not wearing enough clothes. And then back. राइट। डॉक्टर, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में हमने बात कर लिया। व्हाट अबाउट पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सम स्किन इश्यूज, मे बी एक्ने और एनी स्किन Hmm. इशू, उनके लिए कोई स्पेसिफिक सनस्क्रीन है, या वो भी रेगुलर जो हम नहीं, लगाते हैं वही लगा सकते acne के लिए तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है। I tell people, okay, if you have a mature skin, it's not about your age हैं? again. Your skin is not sensitive, doesn't have acne, has no comedones, blackheads, whiteheads, congestion. You can do anything on your face, if I put it very simple. But if you have a sensitive skin, which is acne, or you have those clogged pores, which are called, whiteheads, blackheads, or you have congested skin, जैसे छोटे छोटे दाने 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 निकले रहते हैं, or some kind of dermatitis, eczema, rosacea, some kind of inflammation, sensitive skin, then you have to choose your sunscreen with great care. You have to check for the label called non-comedogenic. Comedones means ये जो black and white head होते हैं, आपके pores are getting हम्म। clogged,
That's what converts into a blackhead or a whitehead. So your sunscreen, or as a matter of fact, any product that you're choosing for your skincare should be non-comedogenic. To put it in simple language, something which is not blocking your pores. Mm-hmm. So acne prone skin has to be very careful. It should be a non-comedogenic sunscreen and broad spectrum. Broad spectrum means, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, there are three kinds of lights which we need to filter. So a broad spectrum will have all three filters for UV rays, infrared rays and blue light. Now acne prone skin क्या होता है? Acne, whether you are under a doctor's treatment or you're not, acne usually heals with marks. Usually. बाय एंड लार्ज यू विल सी ब्रम 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 ब्लेमिशेस, जिनको लोग इन अ सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर आप प्रोटेक्ट नहीं Mm-hmm. करोगे तो वो ब्लेमिशेस डार्क होते रहते हैं विद टाइम, क्योंकि मेलानिन सिंथेसिस शुरू हो गया। एंड व्हेन हाउ Right. मेलानिन सिंथेसिस हैपन, व्हेन द लाइट फॉल्स, द अल्ट्रावायलेट रेज और एनी अदर लाइट, व्हेन दे फॉल ऑन द स्किन, हमारा एक पिगमेंट होता है अंदर मेलानिन, जो फट 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 करके बनने लगता है। तो अगर ऑलरेडी एक स्पॉट बना हुआ है तो इफ यू नॉट प्रोटेक्टेड, वो और डार्क होता जाता है। So acne prone skin has to be very careful in choosing any product, including sunscreen. The word that you have to understand is non-comedogenic. This is usually written on the labels, the ones who make research products. Right. डॉक्टर, अब तो हमें ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया है कि हमें क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, किस किस एरियाज में अप्लाई करना है। we still have such people in our society जिन्हें लगता है कि बाहर जाएंगे, कपड़ों से कवर कर लेंगे फेस, हाथ में मास्क पहन लेंगे, ऊपर तक ग्लव्स लगा लेंगे, हेलमेट तो है ही, और गला भी कुछ चीज से कवर कर लेंगे, तो कुछ एक्सपोज रहा ही नहीं सन के सामने। अब क्या करना है, सनस्क्रीन लगाना है कि नहीं? सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? अगर पूरा फुल बॉडी कवर रहे फिर भी क्या सनस्क्रीन जरूरी है? हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज से तो प्रोटेक्शन ले ली, बाहर गए, ओके, योर क्लोथ्स आर एक्टिंग एज वेरी गुड फिल्टर्स, यू डोंट नीड एनी प्रोडक्ट टू गिव यू प्रोटेक्शन। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन प्रियांशी, आपने कपड़ों से अपने को यूवी रेज से तो बचा लिया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट इंफ्रारेड एंड ब्लू लाइट। अब आप फोन के आगे या अपने लैपटॉप के आगे तो सारे कपड़े ऐसे पूरा कवर करके नहीं बैठोगे ना। दिस लाइट आफ्टर शुरू कुछ, अगर आपका एक्सपोजर 1-2 घंटे का है 24 घंटे में, जो आजकल रेयर हो गया है, मी बीइंग अ डॉक्टर मेरा इतना ज्यादा एक्सपोजर होगा, जबकि मेरा तो कोई लैपटॉप से लेना देना नहीं है। गॉट इट? बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, कितने सारे प्रोफेशन, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक लोग, दे वर्किंग फ्रॉम होम, 12-12 घंटे उनका लैपटॉप पे एक्सपोजर है, तो वहां तो मुंह पे कपड़ा उपड़ा बांध के नहीं बैठ सकते ना, तो वहां तो एक्सपोज हो ही रही राइट, है ना लाइट को। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। राइट। सनस्क्रीन, क्योंकि ये सालों पहले बना था, तब सन से ही एक लाइट आती थी, तब ये गैजेट्स नहीं थे, इतने बड़े बड़े आर्टिफिशियल लाइट। अब आप स्टूडियो में बैठे हो, कितनी बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, ओटीज हैं, राइट, हॉस्पिटल्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, मॉल्स हैं, सब जगह। उससे कहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी? राइट? तो अगर आप बाहर घूम रहे हो, आप टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, पैदल चल रहे हो, व्हाटएवर, प्रोटेक्ट विद अम्ब्रेलाज, big shades, maybe a dupatta, hanky, whatever. But when you're indoors, when you're exposed to this kind of light for more number of hours, of course your skin will get damaged. To answer your question in a very simple, I feel बड़ा scientifically बात करनी चाहिए, logic दो तो लोगों को समझ में आता जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल समझ में आएगा। एंड आई बिलीव जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, ये लाइव देख रहे हैं, दे आर फाइंडिंग इट वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। है। Yes. जो जैसा है, वैसा आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। वी हैव डॉक्टर मेघना गुप्ता विद अस टुडे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग सनस्क्रीन ऑन अ डे टू डे लाइफ। डॉक्टर, एक और बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्योंकि हम इंडिया से हैं, हम इंडियन सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारी इंडियन सोसाइटी में एक चीज़, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी इश्यू हो स्किन में, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। हमारे दादियों के, परदादियों के दिए गए नुस्खे हम अपनाते हैं। हमें लगता है कि इफ वी स्टिक टू आवर रूट्स, तो शायद सारे सॉल्यूशंस वहीं से मिल जाएँगे। हमें ज़्यादा, वी आल्सो हैव सच सॉर्ट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी, आज भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं, ज़्यादा नए चीज़ें नहीं सीखने हैं, अभी भी पुरानी चीज़ों से ही काम चल जाएगा। तो सनस्क्रीन की जगह कोई सब्स्टिट्यूट घरेलू नुस्खे हैं हमारे पास, या दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन? So to answer your question, of course, old is gold. I'm not denying. यस, पुरानी चीजें यस, अच्छी होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रेलेवेंट नहीं रहोगे आज के जमाने के हिसाब से, तो आप खुद ही रिडंडेंट हो जाओगे।
टू मेक इट सिंपल, आपको अपने आप को अडॉप्ट और एसिमुलेट करनी पड़ती नई चीजें। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने में ओजोन लेयर की डिप्लीशन नहीं थी, इतना पोल्यूशन नहीं था, खाना हमारा इतना ज्यादा प्रोसेस फूड हो चुका है। पहले बहुत सिंपल सादा खाना, सादा जीवन, सादा सोच विचार थे, अभी तो थॉट्स ही पोल्यूट हो गए हैं, राइट? इसलिए हमें कुछ नई नई चीजें लानी पड़ती हैं उन सब चीजों से फिल्टर करने के लिए, टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगर हम ये मान के चले, जो पहले से मुल्तानी मिट्टी लगा के स्किन अच्छी हो जाती थी, आज के जमाने में नहीं होने वाली। पहले लोग शिकाकाई और पता नहीं किसके रीठा और पता नहीं किस किससे आंवला से सिर धोते थे, Yes, एक भी पोल्यूशन yes. का पार्टिकल नहीं निकलेगा। ओके, ऐसी स्किन Mhm, का है। अगर आप पुराने जमाने के हिसाब से रहोगे तो आपका तो बिल्कुल सब कुछ ही पुराना करना चाहिए, आपकी एयर एकदम फ्रेश रहनी चाहिए, आप बिल्कुल फल पत्ती फूल पत्ती खाओ, बिना पेस्टिसाइड के, बिना किसी केमिकल के। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन, आप उधर वाली चीजें आज के जमाने में एप्लीकेबल नहीं है, उनको अडेप्ट mhm. करना जरूरी है, मॉडिफाई करना जरूरी है, जिससे वो प्रेजेंट Right, टाइम्स में रेलेवेंट रहे। घरेलू right. चीजों में से सिर्फ एक कैलामाइन लोशन होता है जो सबके घरों में होता है, जो कि एक फिजिकल बैरियर दे सकता है। कैलामाइन, उसमें भी बेसिकली जिंक ऑक्साइड ही होती है, इट्स मेड ऑफ जिंक ऑक्साइड, व्हिच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट फिजिकल सनस्क्रीन। तो किसी को अगर Mhm, किसी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट नहीं करना है, या ड्यू टू एनी रीजंस हैव रिजर्वेशंस एंड इनहिबिशंस अबाउट यूजिंग अ सनस्क्रीन, they can use a plain calamine lotion which will give them some weak barrier. I will not say it will be as effective as a physical sunscreen which has been researched and developed, but something is better than nothing. 100% प्रोटेक्शन तो नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है फ्रॉम अ प्लेन कैलामाइन लोशन, जो यूजुअली हर इंडियन हाउस होल्ड में एक कैलामाइन लोशन की बॉटल जरूर होती है। right. डॉक्टर, अक्सर जब हम स्किन के बारे में बात करते हैं, एक बहुत ही मेजर चीज हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ बाहरी सुंदरता के बारे में बात करते हैं, अंदर क्या हो रहा है नहीं पता। ऑल्सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग भूल जाते हैं, कि हमारा स्किन वैसा ही दिखेगा जैसा हम खाएंगे, या अंदर हमारा बॉडी जैसा होगा बाहर वैसा ही दिखेगा। डॉक्टर, पानी का महत्व कितना ज्यादा है? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ड्रिंक वाटर, द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर जो हमें डेली इंटेक करना चाहिए? स्पेशली समर्स में आई थिंक हमें थोड़ा सा इंटेक बढ़ाना भी चाहिए विथ द वेदर कंडीशन। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम भूल जा रहे हैं पानी पीना, हम काम में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना इंडल्ज हो गए हैं, दैट वी आर फॉरगेटिंग द सोर्स ऑफ आवर लाइफ, हम उसे भूल जा रहे हैं। व्हाट आर योर टेक ऑन दैट? See, yes, I firmly believe what you eat matters. What you eat is what reflects. So, of course, lifestyle plays a huge role. And lifestyle is not just food habits, it's also your exercise regime, your stress management, all three things. Right, So, apart from right. genetics and external care, your internal, what you really feed your body, it reflects. So, हम skin का अगर सिर्फ skin की बात करें, तो you have to take antioxidants in your diet, which means intake of colored fruits and vegetables. Three colored Mhm. fruits I tell people usually, which you must include in your diet, whichever are seasonal local fruits available, right? हर फ्रूट का किसी से कैरोटीन मिल रहा है, किसी से बीटा कैरोटिनॉइड मिल रहा है, किसी से फाइटोस्टेरॉल मिल रहा है, किसी से विटामिन सी, किसी से विटामिन ई, किसी से ग्लूटाथियोन। तो इतना कौन दिमाग लगाएगा कि आज का ये आज का वो। जस्ट सी कि थ्री कलर्ड फ्रूट्स हमें इंक्लूड करने एज एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस की जब आप धूप में एक्सपोज होते हैं तो आपका सेल्स जो है वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, उस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के चक्कर में ही सेल की डेथ होती है। तो अगर आप एंटी क्यों पढ़े जब फ्रूट्स खाओ रीजन नहीं पता, अब फ्रूट्स खाओ। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, दे फाइट विद दोस फ्री रेडिकल जनरेशन एंड दे इंप्रूव द लॉन्जिविटी ऑफ योर सेल्स। हम यहाँ स्किन की बात करें तो स्किन सेल्स हेल्दी रहते हैं, सो एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए। वाटर ऑफ कोर्स प्लेज अ ह्यूज रोल फॉर एवरी सेल फंक्शनिंग। इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप पानी इंटेक नहीं लोगे तो लिप्स चैप होंगे, स्किन डिहाइड्रेटेड रहेगी। बट टू आंसर दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम एंड आस्क, मैं तो 2-2 3-3 लीटर पानी पीती हूँ फिर भी मेरी स्किन अच्छी नहीं। ऐसा नहीं है कि 3 लीटर पानी पिया तो स्किन अच्छी होगी, दैट्स नॉट द सोल Mhm, हाइड्रेशन। यस इट्स mhm, इंपॉर्टेंट, बट ऐसा भी नहीं है कि जो सिर्फ पानी पीते रहते हैं उनकी स्किन अच्छी। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर mhm, एवरी सेलुलर फंक्शनिंग, आपके सारे ऑर्गन्स हर चीज को पानी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पानी पीऊंगी तो भाई मुझे और चीजें कुछ नहीं करनी है। हर चीज का अपना एक रोल होता है, जैसे बोलते हैं ना हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ऐसी हर yes. एक चीज का स्किन हेल्थ में रोल है। फ्रॉम योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू योर एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड दैट यू ईट टू द लाइफस्टाइल टू योर थॉट्स प्रोसेस। जिन लोगों को इंसोम्निया Mhm, रहता है, जो सोता ही नहीं है, ओवर थिंकर्स हैं, उनके अंडर आई सर्कल्स दिखते हैं, स्किन पैची दिखती है, डल डिहाइड्रेटेड स्किन दिखती है। सो हर चीज का एक रोल है, रेंजिंग फ्रॉम योर फ्रूट इनटेक टू योर फूड, to your fruits, to your water, to your skincare products.
Of course, genetics play a role. Everything in totality plays a role towards your skin health. Right. So डॉक्टर, now we'll quickly move on to the questions जो हमारे पास आए हैं viewers की तरफ से. The first question comes from Sonia. Sonia asks, can sunscreen prevent skin cancer? Yes, it can. Should be used. It can. It's a very good preventive measure. Right. The next question comes from Abhishek, who asks, are there any alternative to traditional sunscreen for sun protection? No, I just said calamine lotion is a weak physical barrier. Apart from that, there are no traditional sunscreens available. Right. The next question comes from Pooja. Pooja asks, is it safe to use sunscreen on children? Yes, as I said, for pediatric age group, which are children, you have to pick up a physical sunscreen. Sunscreen which does not interact with the skin cells. They remain like a film, which are zinc oxide based and titanium dioxide. That is why her company a kids range alag banati hai. So Right. it is important, and you have to choose the right sunscreen for the kids. Absolutely. The next question is, uh, can sunscreen cause allergic reactions? Yes, it can. Certain people, it can. Allergic reactions can happen to anything and everything under the sun. That's just the no irony that I'm talking. Yes, there are few people hypersensitivity reaction can happen. Those kind of Right. people already know that they have a sensitive skin. Okay, so Right. for them Right. again, the physical sunscreen is a better option, which are mineral sunscreens. As I said, they don't interact with skin cells. And to answer this Mhm. question further, if you know that you are a highly allergic person, you would pick up a physical sunscreen. But let's say you don't know, you are unaware. So whenever you pick up, you can do a patch test somewhere here behind the ear, here in this area. Use a little amount of the product every day. So you will come to know whether Right. you are reactive or you're allergic. So if that's called a patch test, do it for 2 3 days, and if you're not reacting, you can use. But yes, hypersensitivity reaction can happen even to sunscreen. Not denying. Right. Right. Also, I think सबसे बेस्ट सोल्यूशन है फॉर द पीपल हु आर स्टिल वरीड कि कौन सा सनस्क्रीन उनके स्किन टाइप के लिए सबसे बेस्ट होगा. अ, आप कितने सनस्क्रीन्स अप्लाई करेंगे, कितना चेक करेंगे? हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा मौजूद है आपके पास टू गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन. ऑल यू हैव टू डू इज विजिट योर नियरेस्ट एक्सपर्ट, एंड आपको इतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा जितना आप अभी इस वक्त दे रहे हैं या जितना Yeah, आप and she very सोचने well में said. That's why I वक्त tell बिता रहे people book a consultation with your dermatologist. Go हैं. and Yes, check. that's They'll it. guide you. That's it. That's it. It's Very good. hassle free. Thank you, It Priyanshi, would for making it so simple. right. It would barely take 5 minutes, I believe. जितना आप समय और efforts और पैसा वेस्ट करेंगे, उतने में आपको एक सबसे अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा. प्लस आपका स्किन भी खराब नहीं होगा उन True that. सारे टेस्टिंग के चक्कर में. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर. हमारे व्यूअर्स की तरफ से आज का लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल सनस्क्रीन? एक बार अगर आप फिर से हमारे व्यूअर्स को I'll बता repeat. सकते I'll हैं द repeat. डिफरेंशिएशन. Very simple. Physical sunscreens are titanium dioxide or zinc oxide base, which just make a flare. Very simply, I'll explain. They do not interact. वो आपकी स्किन के साथ मिलके एक लेयर नहीं बना रहे ऊपर से. Those are physical sunscreens. Chemical sunscreen doesn't mean they are bad. They don't contain harmful chemicals. They contain good, beautiful chemicals. As I said, chemical is not a bad word. Water itself is a chemical structure, H2O. So chemical means it's interacting with your skin cells to give you a barrier, to give you a protection. That's the difference. वेल, आई बिलीव आप सभी को आपके आंसर्स मिल चुके हैं. एंड नाउ दैट वी नो हाउ टू अप्लाई सनस्क्रीन, व्हाई इज इट सो मच इम्पोर्टेंट टू अप्लाई सनस्क्रीन, आई बिलीव कि आप सभी फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट यू गाइज विल स्टार्ट अप्लाइंग सनस्क्रीन फॉर योर betterment, for your skin betterment. And that was Dr. Meghna for us. Thank you so much, Dr., once again for your valuable time. It was a very, very informative session for our viewers, and it was great to hear from you. We look forward to many more such session in coming time. And thank you, viewers, for your excellent participation for today's session. We are extremely, extremely delighted to have you all for this live, and we would love if you would stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Thank you so much. Have a great, great evening ahead. Stay safe and stay healthy. Thank you, Priyanshi. It was lovely. You were a great anchor. And I know the questions were beautiful. It was easy for me to answer. Thank you so much, viewers, for patient hearing and asking so many questions. That means people were actually hearing. Thank you, guys.
Have a great life. Bye. Thank you. Thank Bye you bye. so much, Doctor. Thank you. Bye.